خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ کو پروفیسر رابن داؤد کی طرف سے سلام۔ آج ہم آپ کے سامنے ویژن انسائٹ ود رابن داؤد کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور جیسا کہ آپ کو ہر بار بتایا جاتا ہے کہ ویژن انسائٹ ود رابن داؤد آئزک ٹیلی ویژن راولپنڈی اسلام آباد سینٹر کی ایک پراؤڈ پریزنٹیشن ہے، جس میں ہمارا مقصد ہوتا ہے خاص طور پہ ہمارے جو نوجوان ہیں، خاص طور پہ مطلب تمام وہ ینگ پروفیشنلز ہیں، تمام وہ مطلب ایوری ون ہو سیکس گائیڈنس ان ایوری اسپیکٹ آف لائف، ایمبیشیسنیس کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ گول اورینٹڈ ہونے کے بارے میں، سکسیس کے بارے میں اور سکسیس سٹوریز کے بارے میں۔ تو یہ پروگرام آئزک ٹی وی کے توسط سے ایک طویل عرصے سے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اینڈ we all team of Isaac Television are thankful for your great response and great love and affection for us. So یہ اس پروگرام کی کامیابی کا سارا کریڈٹ ہم خداوند یسوع مسیح کو دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ سب ویورز کو بھی، کہ جو اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کے آئزک ٹیلیویژن کی ٹیم کی ساری کاوش کے لیے بھی، اور میں بینگ دا ہوسٹ جو ہے I am thankful to all my viewers for the overwhelming response، اور آپ سب کی ملک پاکستان میں اس پروگرام کو لائک کرنے کے لیے I really appreciate your efforts۔ ہم ہر ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے ڈفرینٹ ٹاپکس شیئر کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ویژن انسائٹ ود رابن داؤد جو ہے وہ سوشو ایجوکیشنل اویئرنیس کا پروگرام ہے، اور ہم آپ کے ساتھ ڈفرینٹ ٹاپکس کو شیئر کرتے ہیں، ڈفرینٹ فیلڈز آف لائف کے بارے میں، ڈفرینٹ اسپیکٹس آف لائف کے بارے میں، اور جس طرح کہ میں نے اسٹارٹ میں بتایا تھا اس کا تعلق کریئرس کے ساتھ ہے، پروفیشنس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ مائنڈ سیٹس کے ساتھ ہے، ایمبیشیسنیس کے ساتھ ہے، گولز کے ساتھ ہے، ڈیسیژن میکنگ کے ساتھ ہے، مطلب کسی بھی ایسے پہلو کے ساتھ ہے جو کہ ہماری لائف میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر رکھتا ہے، ایک امپورٹنٹ امپیکٹ فیکٹر کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو آج جو ہمارا پروگرام ہے اس سے ہم آگے بڑھائیں گے۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا ٹاپک ہے بیسکلی گروتھ اورینٹڈ ہونا ہماری لائف میں کس قدر ضروری ہے۔ آئی مین کہ جس طرح ہم سکسیس کی بات کرتے ہیں تو سکسیس میں سب سے پہلے جو ہے وہ گروتھ اورینٹڈ ہونا ہماری لائف میں بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، جس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی لائف میں ایک بڑا کروشل رول پلے کرتے ہیں۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ ہمیں گروتھ اورینٹڈ ہونے کے لیے، یعنی کہ با مقصد یا گولز کو اچیو کرنے والے فیکٹرز کون سے اپنی لائف میں اڈاپٹ کرنے ہیں۔ آلدو کہ وی نو کہ ہم جس ٹائم میں سے گزرتے ہیں یہ ایک بڑا چیلنجنگ ٹائم ہوتا ہے، اور مطلب سم ٹائمس ہم ایسا فیل کرتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے اپرچونیٹیز ختم ہو چکی ہیں، یا اس طرح لگتا ہے کہ ہم بہت ساری ڈیفیکلٹیز میں ہیں یا بہت سارے چیلنجز میں اسٹرکڈ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چند چیزوں کو اڈاپٹ کرنے سے ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم اوور کم کر سکتے ہیں اپنا بیسکلی، جس طرح کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے، دس از آل اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ۔ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو کہ مائنڈ سیٹ کا ایک بڑا ڈفرینس ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اکثر اوقات ہم جب اپنی سراؤنڈنگس کے لوگوں سے جب ملتے ہیں تو سب سے پہلے ڈفرینٹ آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ گلے کہنا چاہیے یا کمپلینٹس کہنا چاہیے یا شکوے کہنا چاہیے کہ حالات بہت مشکل ہیں، یا مہنگائی ہے، یا غربت ہے، یا بے روزگاری۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ سب کچھ پریکٹیکلی طور پر ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے لیے اور اپنے سے جو کنیکٹڈ لوگ ہیں ان کی بہتری کے لیے اپنے وسائل کو بڑھانے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جس طرح کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جیسا کہ آج کل ای مارکیٹنگس کا، ای ایجوکیشن کا، ہر چیز جو ہے وہ ہماری ایکسیس میں ہے، تو ہم اس میں بہت ساری چیزیں سیکھ کر اس میں ایک ڈفرینس ڈال سکتے ہیں۔ بٹ یہ کہ جس طرح کہ میں ہر دفعہ ایک بات کہتا ہوں کہ دو سچویشنز ہوتی ہیں، کہ یا تو آپ حالات اور سچویشنز کے انڈر خود سٹریس کا شکار ہو جائیں، یا مطلب دب جائیں، یا سپریس ہو جائیں۔ آئی وڈ سے رادر سپریس از بیٹر ورڈ رادر دین سٹریس۔ تو دوسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو اوور کم کریں اور آپ ان کے اوپر ڈومینیٹ کریں، لیکن انفارچونیٹلی
बीइंग द रिसर्चर और एजुकेशनिस्ट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे डोंट हैव द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की कमी जो है वो एक बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम नहीं कर पाते। तो हमें सबसे पहले अपनी जो मेंटल कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करना है, उसको इन्हेंस करना है, उसको बेटर करना है, और उसके साथ साथ हम मतलब तभी ऐसा पॉसिबल हो सकेगा कि हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकें। सो फॉर एग्जांपल इफ़ वी थिंक सो कि हमारी आमदन जो है वो कम है और हमारे अखराजात उससे ज़्यादा है, नो डाउट कि आजकल आपको हर सेकंड पर्सन जो है वो इस बात के लिए कंप्लेन करता ज़रूर नज़र आता है, लेकिन हमें चाहिए कि हम उसके लिए अमली इक़दाम करें ताकि हम उस सिचुएशन को फेस कर सकें कि कैसे अपने आमदन के ज़राए जो है उनको इंक्रीज़ करना है। डिफरेंट बहुत सारे मतलब हमारे पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सोर्सेज अवेलेबल होते हैं जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। गोल ओरिएंटेड होने की हम बात कर रहे थे, तो गोल ओरिएंटेड होने में सबसे पहला और जो ज़रूरी एस्पेक्ट है कि अब गोल ओरिएंट नंबर फर्स्ट इज गोल ओरिएंटेड बट फ्लेक्सिबल। गोल ओरिएंटेड होने में समटाइम्स हमने अपनी लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स बनाए होते हैं और हम इतने स्ट्रिक्ट होते हैं उन प्रिंसिपल्स के ऊपर कि हम उसको उनसे बिल्कुल ज़रा सा भी दाएं बाएं होने का नहीं सोचते। अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि वी शुड बी मैन ऑफ प्रिंसिपल, वी शुड बी पीपल ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन मैं समझता हूँ कि गोल ओरिएंटेड होने के लिए ज़रूरी चीज़ है कि आपको फ्लेक्सिबल होना भी ज़रूरी है, लचकदार होना भी ज़रूरी है कि वक्त के साथ आपने कैसे अपने आप को अकोमोडेट करना है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली कैसे अकोमोडेट करना है, अपने आप को वक्त के अकॉर्डिंगली कैसे मोल्ड करना है। सो मैं समझता हूँ कि ये एक दिस इज़ द पॉइंट ऑफ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। एम्बिशियसनेस में ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ अपने चैलेंजेस को ओवरकम करना है, ना कि हार्शनेस या स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स के साथ। सो प्रिंसिपैलिटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। रसूलों की बात जब हम करते हैं, लेकिन लचकदार होना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले फॉर्म द प्रिंसिपल्स व्हाट यू वांट टू अडॉप्ट फॉर गेनिंग द सक्सेस। जो सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे नज़दीक में वो वसाइल की कमी से भी ज़्यादा, और ये सब चैलेंजेस, ये महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी से भी बढ़ के सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अवेयरनेस का एक फुकदान है हमारी लाइफ में। उसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग का भी फुकदान है। जहाँ तक मैं इंडिविजुअल कैपेबिलिटी की या इंडिविजुअल प्रोग्रेस की बात करता हूँ, तो वहाँ पे हमेशा मैं आपको ये चीज़ भी साथ हाईलाइट करता हूँ कि इन्हीं सिचुएशंस के अंदर रहते हुए भी आप बहुत सारे लोगों को प्रोग्रेस करते हुए लाइफ में देखेंगे, तरक्की करते हुए देखेंगे, लेकिन बहुत सारे मेजॉरिटी लोग वो हैं जो इसी ट्रेडिशनल लाइफ के पैटर्न के ऊपर चलते हैं। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसा कि पिछले मंथ्स में मैंने भी अनाउंस किया CSS का प्रोग्राम, हम अभी भी खुदा के फजल से उसको कंटिन्यूटी से चला रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का भी चला रहे हैं, आइट्स का भी चला रहे हैं। मतलब खुदा ने हमें मौका दिया कि हम आइज़िक TV के वजह से हमने ये ऑनलाइन क्लासेस को शुरू किया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 50% से ज़्यादा वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ऑफ कोर्स कि जब अब बड़े चैलेंज होते हैं तो आपको बड़ी एफर्ट रिक्वायर्ड होती है, बट दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू फेस अप द बिग चैलेंजेस इन देयर लाइफ। बस वो एक ऑर्डिनरी अप्रोच के साथ चाहते हैं कि हमें गोल्स को मिल जाएं, लेकिन हमें अपने आप को डिवोट या डेडिकेट करना पड़ता है। मैं आपके साथ एक डाटा शेयर करता हूँ कि 1980 से लेके 1980 से लेके 2020 तक 40 इयर्स में सिर्फ 19 लोग जो हैं वो हमारे CSP ऑफिसर बने हैं CSS का एग्ज़ाम करके। 40 सालों में सिर्फ 19 लोग जो हैं, उसमें से भी जो लास्ट 7 या 8 हैं वो माइनॉरिटीज़ कोटे के ऊपर हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बिकॉज क्या हमारे लोगों में कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं, या हम लोग एजुकेटेड नहीं हैं, या हमारे में मतलब व्हाट इज़ द डिफरेंस फैक्टर कि हम लोग जो हैं क्या हार मान लेते हैं, क्या हम गिव अप कर देते हैं, क्या हम डिफीट के आदी हो चुके हैं, या हम लोग आसाइशों के आदी हो चुके हैं, या आसान चीज़ों के आदी हो चुके हैं। सो दैट इज़ वाई मेरा कंसर्न बीइंग द ट्रेनर और बीइंग द एजुकेशनिस्ट एंड बीइंग द होस्ट, मेरा कंसर्न है कि हम लोग जो हैं अपनी एफर्ट्स में उसमें हमें
डेडिकेशन लेके आने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म, और ये फ्रेम ऑफ माइंड ऐड करने की ज़रूरत है कि हम ये काम कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इस चीज़ को पहले से ही सोच लें कि ये मुश्किल है और मैं नहीं कर सकूँगा, मैं इस चीज़ से कतई ताल्लुक कि हमारा यूनिवर्सिटीज़ का निज़ाम जो है वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल्स को प्रोड्यूस नहीं करता, ये मैं हमेशा इस बात के ऊपर फोकस करता हूँ। वो थ्योरेटिकल ज़रूर बनाता है, ग्रेड्स देता है, जीपीएस देता है, लेकिन उनको स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल्स या स्ट्रॉन्ग माइंड्स नहीं उनके बनाता, उनको स्ट्रॉन्ग करियर्स की गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करता। तो मतलब ये कुछ इश्यूज़ हैं हमारे एजुकेशन के सिस्टम के। लेकिन इसमें सिस्टम के अंदर से ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सक्सेस स्टोरीज भी बनते हैं, बिकॉज के दे हैव स्ट्रॉन्ग माइंड सेट, they have strong dedication, they have strong mental capability, they have strong ambitiousness, regardless of what their financial conditions were। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मेहनत की और लाइफ में एक पोजीशन या एक मुकाम गेन किया। उसके बाद दूसरी बात ये कि हमें एक एम्बिशियसनेस हमारी लाइफ में होना ज़रूरी है। नंबर सेकंड थिंग इज़ कि हमारी लाइफ में एम्बिशियसनेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब हम एम्बिशियस ही नहीं हैं, यानी कि एम्बिशियसनेस ये होती है बाब मकसदियत, कि जब आप एक गोल के लिए बाब मकसद नहीं है तो हम उस गोल को कैसे अचीव कर सकेंगे। सो इसके लिए थॉरो एंड डेडिकेटेडली एम्बिशियस होना, मतलब सिर्फ एम्बिशियस नहीं, सिर्फ थ्योरेटिकली बाब मकसद होने से आप उस गोल को अचीव नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले तो हम अपने लिए गोल को डिज़ाइन करें कि हमारा गोल है क्या, हमारा मकसद है क्या, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। समटाइम्स हम बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, हम सब कुछ इनफैक्ट अचीव करना चाहते हैं, बहुत कुछ से भी बढ़ के सब कुछ की बात मैं कर रहा हूँ कि हम सब कुछ अचीव करना चाहते हैं। लेकिन हम बात करें कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक हमारे पास एक राइट गोल नहीं है, एक राइट प्लान नहीं है, तो हम बहुत सारी कश्तियों के मुसाफिर बन जाते हैं। सो चूज़ वन गोल एंड फॉलो दैट गोल विद रिलेंटलेस एम्बिशियसनेस, यानी कि इंतहा की बामकसदियत के साथ आप उसको अचीव करें, और जब तक आपने उसको अचीव नहीं करना तब तक आपने जो है ना बिल्कुल मतलब सोचना भी नहीं है कि हम सो आई ऑलवेज से कि नेवर फिनिश व्हेन यू आर टायर्ड बट फिनिश व्हेन यू आर डन, कि उस वक्त काम ख़त्म नहीं करना जब इंसान थक जाता है। हम थक जाते हैं, हम कहते हैं चलें कल कर लेंगे, फिर उसके बाद कल फिर जाती है तो फिर हम हमारा फिर फ्रेम ऑफ माइंड आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाता है। और मैंने अपने एक पिछले प्रोग्राम में आपके साथ एक स्टैटिस्टिक शेयर की है कि अदाद शुमार के मुताबिक जो लोग न्यू ईयर की रेजोल्यूशन बनाते हैं कि हमने इस साल में अपने अंदर ये तब्दीली पैदा करनी है, हमने ये बनना है, हमने अपने अंदर से ये बैड हैबिट्स ख़त्म करके हमने इस तरीके से ग्रूम करना है, तो सिर्फ 9% ऐसे लोग हैं 100 में से जो अपनी कही हुई बातों को पूरा करते हैं, यानी कि कमिटमेंट के साथ। यानी कि हम ये सिर्फ इंडिविजुअल गोल्स की बात कर रहे हैं, हम ये कलेक्टिव गोल्स की बात नहीं कर रहे। मतलब अगर आप अपने साथ भी अपनी की हुई कमिटमेंट्स को अपने साथ ही पूरा नहीं करते तो फिर हम कैसे मतलब जो हमारे साथ दीगर लोग हैं, जो हमारे फैमिलीज़ में हैं, हमारी सोसाइटी में हैं, हमारे जॉब प्लेसेस में हैं, तो हम किस तरह उन कमिटमेंट्स को पूरा कर सकेंगे। तो इसलिए एम्बिशियसनेस होना हमारी लाइफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल फैक्टर है। उसके बाद थर्ड थिंग है कॉन्फिडेंस, जो है फियरलेस कॉन्फिडेंस जिसको हम कहते हैं। फियरलेस कॉन्फिडेंस ये कि जब आपके अंदर एतमाद है इस चीज़ का, जब आप इस बात पे एतमाद रखते हैं, जब आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, तो फिर आप ये काम कर सकेंगे। आप अपने ऊपर भरोसा रखें कि आप ये काम कर सकते हैं, आई कैन डू। सबसे पहले होता है गॉड्स ग्रेस ऑफ कोर्स, तो मतलब ये होता है गॉड्स ट्रस्ट, देन होता है गॉड्स बिलीफ एंड देन सेल्फ बिलीव, यानी कि खुदा पे भरोसा और फिर अपने पे भरोसा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने पहले से ये चीज़ सोच ली कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये तो जब मैं अपनी डे टू डे लाइफ में भी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आप मतलब किसी भी तरह का एक बड़ा एग्ज़ाम होता है या तो आप इसको क्यों, तो वो कहते हैं कि हमारे अंदर सलाहियत नहीं है। क्यों नहीं है सलाहियत? मतलब ये सोचने की बात है कि हम लोग क्यों अपने आप से गिव अप कर देते हैं कि मतलब हम लोग जो हैं वो उस मेयार को नहीं पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच सकते, बिकॉज कि हम लोग इस बात पे यकीन कर चुके होते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकेंगे। सो दैट इज़ वाई कॉन्फिडेंस प्लेज अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट रोल। सेल्फ बिलीफ की मैं बात करता हूँ कि हमारे अंदर जब तक सेल्फ बिलीफ नहीं है
आई कैन डू, यानी कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो हम ये काम तब तक नहीं कर सकेंगे जब तक हम खुद नहीं सोचते कि हम ये काम कर सकते हैं। तो इस बात का बिलीव रखना है, इस बात का यकीन रखना है कि आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद चौथी बात जो इम्पोर्टेंट है इस रिगार्ड में, वो है क्यूरियस होना, तजस्सुस होना। तजस्सुस के साथ जो है ना एक्सप्लोर करना, ये मैं आपको एक्सप्लोर का मतलब होता है लाइक सर्च करना, इसके बारे में मुख्तलिफ के कैसे कौन कौन से पाथ अवेलेबल है। मसलन अगर आप कोई सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए क्या क्या कुछ अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, हमें इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को डेली पढ़ने की ज़रूरत है, हमें न्यू वोकैबुलरी को ऐड करने की ज़रूरत है, अपने एक्सप्रेशन ऑफ एग्जाम्स की तरफ बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जो लोग इस फील्ड में कामयाब हो चुके हैं उनसे मिल के पूछने की ज़रूरत है कि आपने कैसे इतनी मेहनत करके इस मुकाम को गेन किया, आपने क्या एफर्ट्स किए, आप कितने घंटे पढ़ते थे आपने। तो समटाइम्स मैं मतलब यूजली बात कहता हूँ कि हम लोग एक टाइम टेबल बनाते हैं बाकायदा अपना, कि हमने अब ये चीज़ इस तरह इस टाइम टेबल के मुताबिक करनी है, लेकिन सिर्फ चंद ही दिन उसको हम फॉलो करते हैं और फिर उसके बाद फिर हम दोबारा से वी कम बैक टू आवर ओल्ड रूटीन्स, यू नो। तो ये बेसिकली ये एक ड्रॉबैक है। तो क्यूरोसिटी का मतलब होता है तजस्सुस होना, कि तजस्सुस के साथ मज़ीद एक्सप्लोरेशन जब तक आप नहीं करेंगे, एक्सप्लोर करना डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, एक्सप्लोर करना डिफरेंट उसके जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं उनके बारे में एक्सप्लोर करना, के स्कोप्स के हैं चीज़ों के, उसके बाद एक्सप्लोर करना, तो दैट इज़ कॉल्ड एज क्यूरोसिटी। हम लोग क्यूरोसिटीज़ जो हैं वो यूजली मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव क्यूरोसिटीज अबाउट पीपल बट नॉट क्यूरोसिटी अबाउट द गोल्स एक्चुअली। सो हम लोग लोगों को ऑब्जर्व और जज करने में महारत रखते हैं कि जी फलां बंदा इस तरह का है, फलां इस तरह का, हम उन्हीं को जज करते रहते हैं। हालांकि खुदा ने भी हमें इस बात का इख्तियार नहीं दिया कि हम किसी को जज करें कि कौन बंदा कैसे है, ये काम खुदा का होता है जज करने वाला। लेकिन ये होता है कि जो काम हमारे करने वाले होते हैं, मतलब हमें क्या क्या कुछ जो है वो मतलब एक्सप्लोर करना है, किन किन चीज़ों को एनालाइज करना है, किन किन चीज़ों को अपने साथ लेके चलना है, तो उन चीज़ों को हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे होते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्यूरोसिटी करें, तजस्सुस रखें, लेकिन उन चीज़ों का जो कि आपकी लाइफ से रेलेवेंट हैं, जो कि आपको ग्रोथ ओरिएंटेड बना सकती हैं, जो कि आपको गोल्स की तरफ लेके जा सकती हैं, जो कि आपको आगे बढ़ने में हेल्पफुल साबित हो सकती हैं, जो आपको रहनुमाई प्रोवाइड कर सकती हैं, जो आपको किसी भी सूरत में एक कीमती गाइडलाइन के तौर पे आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ क्यूरोसिटी। उसके बाद हम पांचवी बात करते हैं। पांचवा पॉइंट जो ग्रोथ ओरिएंटेड होने के लिए ज़रूरी है हमारी लाइफ में, दैट इज़ बेसिकली माइंड सेट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कि माइंड सेट भी ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए। कि अगर आप सिंपल फॉर एग्जांपल एक ऐसा माइंड सेट रखते हैं जो कि सिर्फ मनफी ही सोचता है, जो कि सिर्फ यही आपको कहता है वो माइंड सेट कि आप ये काम नहीं कर सकते, जो आपको यही कहता है कि ये काम मुश्किल है, जो यही कहता है आपको कि ये बहुत कम लोग कर सकते हैं, जो यही कहता है कि मतलब हम एक ट्रेडिशनल थिंकिंग कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज द नेगेटिव माइंड सेट। तो जहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं मेहनत करनी चाहिए, तो सिर्फ मेहनत ज़रूरी नहीं है, मेहनत बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि हमें दीगर पहलुओं के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। और उसमें से जो मैंने अहम आपको एक बात अभी बताई, छठी बात वो ये है कि पांचवी बात मैंने आपको बताई कि आपका जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि कंस्ट्रक्टिव चीज़ों को सोचे, जो कि पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचे, जो कि आपको तहरीक बख्शे, जो कि आपको ऐसी मूव बख्शे कि आप के लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो, एक सोर्स ऑफ गाइड होना चाहिए, कि आप हमेशा अपने आप पे बिलीव करें कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे लिए ये काम मुश्किल नहीं है, मैं खुदा का फजल और खुदा का हाथ मेरे साथ है, और मतलब मैं ये काम डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ कर सकता हूँ। तो दिस माइंड सेट विल बी, अब मैंने स्टार्ट में भी आपको यही बात बोली थी कि ये बेसिकली मुश्किल हालात नहीं होते जिससे हम स्ट्रेस होते हैं, ये हमारा माइंड सेट होता है जो उसको फेस नहीं कर पाता है। तो ये दो फर्क चीज़ें हैं कि किसी भी मुश्किल सिचुएशन के अंदर, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जिस चीज़ का एक सब्सटेंशिएटिव रोल होता है, वो होता है हमारा माइंड सेट। अगर आप उस सिचुएशन को पॉजिटिविटी के साथ फेस करेंगे तो आप यकीनी तौर पर उस चैलेंज को डिफीट करने में कामयाब होंगे। लेकिन अगर आप उसको नेगेटिविटी के साथ फेस करेंगे और डिसअपॉइंटमेंट्स में रहेंगे या
उसको एक मुश्किल सिचुएशन बनाते रहेंगे तो अगेन ये हमारा माइंड सेट होगा जो कि हमें इस बात के लिए सिर्फ कहता रहेगा कि आप ये काम नहीं कर सकते. तो ऑलवेज हैव द सेल्फ बिलीव एंड ऑलवेज हैव द पॉजिटिव माइंड सेट. दीज थिंग्स विल बी हेल्पफुल. ये हमारा था पॉइंट नंबर 5 जो कि अभी हमने देखा कि किस तरह वो हमारे लिए क्रूशियल साबित होता है. उसके बाद जो छठी बात है और वो ये है कि हमें कमिटेड होना चाहिए. दैट वी शुड बी, जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले भी आपके साथ बात की कि कमिटेड होना किस तरह ज़रूरी है हमारी लाइफ में. हम सबसे पहले अपने आप के साथ कमिटेड हों तो फिर हम बाकी अपने मामलात के साथ, मैटर्स के साथ, पीपल के साथ, सराउंडिंग्स पीपल के साथ. सो दैट इज़ वाई दिस कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. जब तक हम कमिटेड नहीं होते, जब तक हम उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने आप के साथ कमिटेड हों. अपने आप के साथ सेल्फ कमिटमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सेल्फ कमिटमेंट ये होती है कि जो आप अपने साथ प्रॉमिस करें कि मैंने ये काम जो है वो मेहनत करनी है और आज का काम कल पे नहीं डालना, जो टाइम टेबल बनाया उसके अकॉर्डिंगली चलना है. अच्छा जी, मैंने जो गोल सेट किए उनको मैंने अचीव करना है. अच्छा जी, मैंने जो भी सबसे पहले है सेल्फ कमिटमेंट. उसके बाद है कमिटमेंट विद अदर्स. तो जब आप अपने साथ कमिटेड होंगे तो देन श्योरली यू विल बी एबल टू फुलफिल ऑल द कमिटमेंट्स विद द अदर पीपल एज वेल. सो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक गोल्स की बात है तो गोल्स की फुलफिलमेंट में भी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो ये फैक्टर है कि आप कमिटमेंट के साथ अपने साथ कमिटेड रहें कि मैंने जो अपनी लाइफ में गोल्स को सेट किया है मैंने उसको बाय ऑल मीन्स आई हैव टू फुलफिल जी. मैंने उनसे पीछे नहीं हटना जब तक मैंने उसको सक्सेस गेन नहीं करनी, अपने गोल को अचीव नहीं करना. नंबर 7वां पॉइंट है जी, दैट इज काम अंडर प्रेशर. के हालात समटाइम्स मुश्किल होते हैं या कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व होती हैं, सिचुएशंस बहुत टफ होती हैं. हमें लग रहा होता है कि हमारे लिए डे टू डे सर्वाइवल भी एक मुश्किल काम है, जो कि नो डाउट कि आजकल के दौर में एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए. लेकिन वो लोग जो अपना मोमेंटम लूज़ कर देते हैं, अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं इस मुश्किल हालात के अंदर, वो लोग बहुत सफ़र करते हैं. तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है इस बात के लिए, मैं समझता हूँ कि आप लोग अपना टेम्पर लूज़ ना करें, अपना मतलब प्रेशराइज ना हो. क्योंकि जो लोग किसी भी बात का प्रेशर ले जाते हैं, जो लोग तो वो अंडर प्रेशर हो जाते हैं, वो इन हालात को फेस नहीं कर पाते और एक वक्त आता है कि वो इन चैलेंजेस के सामने सरेंडर कर जाते हैं और वो लाइफ में बहुत पीछे रह जाते हैं और वो अपने सामने उन लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं कि जो किसी गोल्स के साथ आगे बढ़े होते हैं. सो दिस इज़ वेरी मच असेंशियल. आई वुड लाइक टू से यू कि आप अंडर प्रेशर होके सिचुएशंस को हैंडल ना करें, बल्कि कूल एंड काम होके. तो ये था हमारा 7वां पॉइंट. 8वीं बात है जी, सिचुएशन के इंचार्ज मतलब बनने. मतलब आप अपनी लाइफ के खुद डिसीजन करना सीखें, बजाय इसके कि अच्छी बात है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम सजेशंस लेते हैं, वी टेक सजेशंस फ्रॉम पीपल, बट नेवर लेट एनीवन टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ. कभी किसी को इस बात के लिए आप मौका न दें कि कोई आपकी लाइफ का, खुदा ने आपको अपनी ज़िंदगी पे इख्तियार दिए है तो आप अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक बने, मतलब खुद जो है मतलब कंट्रोलर बने. आई मीन कि उसको कैसे आपने कहाँ लेकर जाना है, कैसे लेकर जाना है. समटाइम्स हम जब बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर भी स्ट्रक हो जाते हैं तो अगेन वही प्रॉब्लम आता है कि पीपल रीच नो वेयर बिकॉज के दे गिव कंट्रोल टू द सिचुएशन, कंट्रोल टू द अदर पीपल, और वही उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे होते हैं. तो टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. दिस इज़ वन एसेंशियल एलिमेंट कि आप अपनी लाइफ के खुद कंट्रोलर बने कि आपने क्या अपनी, बिकॉज इट्स योर लाइफ, आपने क्या गोल अचीव करने हैं अपनी लाइफ में, किस मुकाम पर कैसे जाना है और क्या गेन करना चाहते हैं. सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. समटाइम्स हालात इस तरह लगता है कि हमारे बस से बाहर हो चुके हैं या सिचुएशंस जो हैं वो हमारे बस से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके बावजूद भी पीपल who know how to handle all this stuff, you know, so they remain steadfast in their life. उसके बाद 9वां पॉइंट है जी कि ऑप्टिमिस्टिक होना. ऑप्टिमिस्टिक होता है मुस्बत रहना अपनी लाइफ में, जो है ना पॉजिटिविटी के साथ कि जब कि ये काम हो सकता है, दिस इज़ पॉसिबल.
سو جب آپ اپنی لائف میں پیسمسٹ، ایک اس کے اپوزٹ میں ایک ورڈ ہوتا ہے پیسمسٹ. پیسمسٹ ہوتا ہے جو ایک منفی اپروچ یا منفی سوچ کو اپنی لائف میں ہر چیز کے بارے میں ایک منفی رائے قائم کرنا، یہ پیسمزم ہے. ڈارکنیس آنا آپ کی لائف میں، تاریکی کا سا جانا، یہ پیسمزم ہے. لیکن اسی کا اپوزٹ جو آپٹیمزم ہے کہ امبیشیسنیس کے لیے آپٹیمسٹک اپروچ کا ہونا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. کہ آپٹیمسٹک ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ آپ کو تحریک بخشے گا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ گول آپ اچیو کر سکتے ہیں، اینڈ you will be able to reach your destination. So in this way I think so کہ یہ ambitiousness and ساتھ ساتھ optimism جو ہے مثبت پانا آپ کی لائف کا کہ I can do it, I will do it, this is possible, behaviors of people are positive and things like it. So میں سمجھتا ہوں کہ یہ optimism is very much important. اور آخری بات یہ کہ strong communicator بننے، اسٹرانگ کمیونیکیٹر بننا کہ آپ کی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں نا، آپ کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، لازمی نہیں کہ آپ ایک ٹیچر ہیں تو آپ کی کمیونیکیشن ہونی چاہیے. کمیونیکیٹر بن کے ایک اچھے کمیونیکیشن سکلز کے ساتھ ہی آپ گائیڈ کر سکتے ہیں کسی کو. ایک اچھی کمیونیکیشن سکلز کے ساتھ ہی آپ مطلب کوئی بھی پوائنٹ جو ہے اس کی شیئرنگ کر سکتے ہیں، کچھ آئیڈیا کی شیئرنگ کر سکتے ہیں. سو جب اگر آپ کی کمیونیکیشن سکلز تو ایمبیشیس ہونے کے لیے if someone asks you for example کہ how did you reach to this place, or someone asks you about how you will fulfill all this goal, so you should communicate it well کہ with a self belief, with a belief کہ یہ helpful ہوں گے باقی لوگوں کے لیے بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز کے ذریعے سے ہی آپ دوسروں کو انسپریشن کا ذریعہ بنتے ہیں، دوسروں کے لیے ایک رول ماڈل کا ذریعہ بنتے ہیں. مثلا اگر کوئی پریچر ہے تو وہ اپنی کمیونیکیشن سے پریچ کرتا ہے، اسی طریقے ٹیچر اپنی کمیونیکیشن کے ذریعے سے ٹیچ کرتا ہے، اسی طریقے سے کوئی مارکیٹنگ والا ہے، کوئی اور بھی شخص ہے این اتھارٹیٹیو پرسن، سو ہی کمیونیکیٹس دا ڈیوٹی. سو یہ سب کام جو ہوتے ہیں یہ اچھی کمیونیکیشن سکلز کے ذریعے سے ہی پاسبل. ایون ہمارے جو بیہیویئرس ہوتے ہیں، ہماری جو لائف کے ایٹیٹیوڈس ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری کمیونیکیشن کے ذریعے سے سامنے آتے ہیں. سو ایمبیشیس ہونے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کمیونیکیشن سکلز کا اپنی لائف میں ایک امپورٹنٹ رول ہے جس کو ہمیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا پروگرام کہ ہمیں اپنی لائف میں ایمبیشیسنیس جو ہے وہ ہونا کے لیے ہمیں کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کو اڈاپٹ کرنا چاہیے یا کن کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہوپ فلی کہ آپ نے جہاں کہیں پہ بھی اس پروگرام کو دیکھا، اس پروگرام سے ضرور سیکھا ہوگا. ہم سب لوگ سیکھنے کے عمل سے گزرتے رہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کو آگے بڑھنے کے لیے، لائف میں گروتھ حاصل کرنے کے لیے، ایمبیشیس ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ہمیشہ ہر دم جو ہے وہ سیکھنے کے عمل کے لیے تیار رکھیں تاکہ ہم لائف میں گروتھ حاصل کر سکیں. جیسا کہ آپ کو سٹارٹ میں بتایا گیا کہ ویژن انسائٹ ود رابن داؤد آئزک ٹیلی ویژن کی ایک پراؤڈ پریزنٹیشن ہے. اور ورڈ آف ایڈوائس کے طور پر ہمیشہ آپ کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب کہ ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے چاہے ہم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، کالجز میں ہیں، اسکولس میں ہیں، جاب پلیسز پہ ہیں، چاہے ہم بزنسز میں ہیں، ہماری سراؤنڈنگس میں کسی بھی جگہ پر ہم موجود ہیں، ہماری زندگیوں سے ہمیشہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے آگے بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں. خداوند آپ کو اور آپ کو خاندانوں کو بڑی برکت دے. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس.